This is the India Read. This is one of the favorite channel of the aspirant of the students who want to take advantage through our channel, because we are providing free of cost education to all the aspirants and needy students. And remember that in our previous lectures we have completed the syllabus of history class 6th NCERT, and now today we are going to start the first chapter of class 7th, that is tracing changes through 1,000 years. Let's start. This is history chapter 1. Name of the chapter is tracing changes through 1,000 years. And remember that this is of NCERT class 7 part 1. Today we will discuss part 1 of this chapter. Again I want to describe you that the name of the chapter, tracing changes through 1,000 years, जिसको हम कहेंगे हजारों वर्षों में आए परिवर्तन. The changes we will talk about only the history here. हम यहाँ पर केवल इतिहास में जो परिवर्तन हुए उसकी बात करेंगे. And one sentence that is very famous: change is the law of nature. यानी कि परिवर्तन कुदरत का नियम है. So in every era, every period, we can see the different type of changes. As we know that the change is the law of nature. ये प्रकृति का एक नियम है, कुदरत का नियम है कि किसी भी चीज में परिवर्तन आना अनिवार्य है, because that is the symbol of the development. क्योंकि यही जो है विकास की निशानी, विकास का चिन्ह माना जाता है. Okay, and if we talk about this chapter, firstly we will discuss about the new and old terminologies. New and old terminologies. Terminologies is also known as vocabulary, जिसको हम कहेंगे नई तथा प्राचीन शब्दावली. If we'll talk about the language, we know that there are so many rules and regulation in one language, like the grammar, vocabulary and phonetics. Language, grammar, vocabulary and phonetics. Okay, as well as there is also one thing that is known as linguistic. तो लैंग्वेज, जैसे कि हम इसमें किसी भाषा के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रामर उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं किसी लैंग्वेज के लिए, उसकी जो वोकैबुलरी रहती है, उसकी जो शब्दावली रहती है, उस पर हम चर्चा करते हैं. फोनेटिक्स, जो साउंड्स की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, जिसको आप फोनोलॉजी भी कह सकते हैं. फोनोलॉजी, दैट इज द scientific study of sounds and language. किसी शब्द को उच्चारण कैसे करना है
उस पर कितना ज़्यादा जोर लगेगा ये निर्भर करता है फोनोलॉजी पे, जो कि एक वैज्ञानिक स्टडी है किसी भी भाषा की, और लिंग्विस्टिक जिसको हम लोग भाषा विज्ञान भी कहते हैं, जिसमें दैट इज दिस साइंटिफिक स्टडी विच टेल अस अबाउट द यूज ऑफ द लैंग्वेज, कि किसी भाषा का प्रयोग कैसे करना है साइंटिफिक तरीके से, हमें वैज्ञानिक पद्धति से सिखाया जाता है, जिसको हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं. ओके, and if we talk about the history, and here we are talking about the changes for 1,000 years. So here in the previous chapters we have studied about the, in previous chapters or in a previous session for class 6 we have discussed about the, in previous session here we have studied about up to Gupta's period and Harshvardhan. Here we will study from the years of 750 to 1750. तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो हम 750 से लेकर 1750 तक की बात इसमें हम लोग करेंगे. ओके, एंड दिस इज द वेरी लॉन्ग पीरियड अबाउट 1,000 years, and you can understand that there is a lot of changing in the variety of the language from past to present, because there is a lot of gap during the development of the humans. मनुष्य के इस विकास के दौरान ये काफ़ी एक लंबा अरसा बीच में रहा, 1,000 years का, जिसके दौरान काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए, and these changes are possibly will be there in the matter of language it will talk about. तो भाषा में भी इसका मीनिंग जो है बदलने अनिवार्य है. ओके, if we talk about the language, there are few words which are different today. ओके, कुछ शब्द ऐसे हैं जो वर्तमान में उनकी स्थिति कुछ हो रहा है, लेकिन पास्ट में, भूतकाल में उनकी स्थिति कुछ और थी. ओके, not only the meaning changing of their meaning, as well as there is the modification in the vocabulary as well as in the grammar also. ना सिर्फ इन शब्दों के अर्थ चेंज हुए, बल्कि इसकी ग्रामर और वोकैबुलरी, शब्दावली भी जो है वो समय समय पर चेंज होती गई. We will here discuss through some examples. If we talk about the if we will talk about the ancient Persian language, that is much different from modern Persian language. अगर हम पर्शियन भाषा की बात करें तो प्राचीन पर्शियन भाषा जो है वो आधुनिक पर्शियन भाषा से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों में अंतर पाया गया है. In the same way today the term India that is using for our country, जो हमारे देश के लिए टर्म यूज होती है इंडिया, इंडिया is the symbol of new modern state. एक मॉडर्न, एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का नाम लिया जाता है, बट इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडस, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद एक्सेट्रा. तो अगर हम भारत के इस नाम की बात भी करें तो ये
इंडस, इंडस दैट इज द रिवर, सिंध नदी से, क्योंकि सबसे पहले जो हमने पढ़ा था द फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट हैज बीन सेटल्ड ऑन अराउंड द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, सबसे पहली जो सभ्यता आई थी जिसको हम सिंध घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सेटल हुई थी, तो इसको उस समय इसका नाम जो रखा गया था वो इंडस रखा गया। और क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो थे हिंदू लोग थे, तो फिर हिंदू, हिंद और हिंदुस्तान कहकर भी इसको संबोधित किया गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें वर्ड टू वर्ड जो है कितनी चेंजिंग आई है। इसमें आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। In the 13th century, word Hindustan means the area of Punjab, Haryana and the land between गंगा एंड यमुना। तो अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द से जो अर्थ लिया जाता था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जो जमीन थी, जो बीच का दोआब था, उसको हम लोग हिंदुस्तान के नाम से कंसीडर करते थे। एज वेल एज इन 16th century Babur used the term Hindustan to indicate the flora, fauna and culture of the inhabitants of subcontinent। और अगर हम बात करें बाबर की, बाबर ने 16वीं सदी में हिंदुस्तान से जो संकेत लिया वो फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा दैट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किंगडम एंड कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स होते हैं कोई वहाँ के निवासी, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप। तो जो भारत का एक उपमहाद्वीप था, as we know that Asia is a continent and we people are living in India and India is a subcontinent। भारत एक उपमहाद्वीप है और उपमहाद्वीप के लोगों के जो रीति रिवाज, उनका सभ्याचार और जो स्टडी थी वेजिटेशन वनस्पति की और बर्ड्स और एनिमल किंगडम की, उससे संकेत लिया बाबर ने। ओके, however in 14th century the famous poet Amir Khusro described it as Hind। 14वीं सदी में एक हिंदी के महान कवि हुए अमीर खुसरो, जिनकी पहेलियाँ आज भी लोगों में प्रचलित हैं, और अमीर खुसरो ने भारत को जो था हिंद के नाम से संबोधित किया था। ओके, तो इसके अलावा हम लोग जो है चर्चा करेंगे देयर वाज द मुगल पीरियड आल्सो। इन द मुगल पीरियड इट वाज नोन एज द व्हेन दिल्ली सल्तनत वाज देयर, it is known as the word sultanate। एक सल्तनत word जो famous था, and when they were extending their empire or administration, it was known as sultanate rather than southern part of India or a southern region। तो उस समय कोई दक्षिणी भारत या दक्षिण
राज्य की बात नहीं की जाती थी, कोई इस तरह का पर्टिकुलर वर्ड नहीं था, बल्कि वो विस्तार को सल्तनत के रूप में लेकर चल रहे थे. सो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस ऑफ द वर्ड्स एंड लैंग्वेज हियर. We will also study in this topic vividly here. We will also talk about the cartographer. Cartographer, we can say that is a person who create maps. Okay, but we can find that there are two different type of maps have been find from the same period. एक पीरियड के भी दो अलग अलग तरह के मैप जो है पाए गए हैं. सो द हिस्टोरियंस और द क्रॉनिकल्स आर रियली फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स टू फाइंड द रियलिटी और ओरिजिनलिटी ऑफ द हिस्ट्री. तो इतिहास में वास्तविक क्या है उसको जानने के लिए इतिहासकारों को इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी जो है करना पड़ा है. ओके, सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, देयर इज वन मोर एग्जांपल will clear this topic. There is a word foreigner. Foreigner जिसका मीनिंग हम लेते हैं विदेशी, और who is not an Indian, we consider him फॉरनर टुडे. तो आज की जो स्थिति है, हम लोग फॉरनर विदेशी वर्ड यूज करते हैं. हु इज नॉट एन इंडियन. अगर कोई भारतीय नहीं है तो हम कहेंगे कि ही इज अ फॉरनर. आज की ये धारा है. बट इन द एंशिएंट टाइम वर्ड फॉरनर वाज टेकिंग डिफरेंटली. फॉरनर वर्ड को प्राचीन समय में डिफरेंट लिया जाता था. जैसे कि द पर्सन हु वाज नॉट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर विलेज or society or who was no longer the part of the society was known as the foreigner. प्राचीन समय में किसी समुची सोसाइटी समाज का या किसी गांव का जो वासी नहीं होता था उसको भी फॉरेनर वर्ड के साथ जो था संबोधित किया जाता था कि ये विदेशी है. ओके, वर्ड फॉरेनर जिसको हम विदेशी कहते हैं in Hindi, Pradeshi, in Persian, अजनबी. और पर्शियन भाषा में अगर बात करें तो इसको हम लोग जो है अजनबी कह सकते हैं. और अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको परदेसी कह सकते हैं. तो किसी प्रदेश का, किसी दूसरे प्रदेश का रहने वाला हम परदेसी, फॉरनर. और पर्शियन की भाषा करें जो हमसे अनजान है, जो हमें नहीं जानता, अजनबी. तो फॉरनर वर्ड जो विदेशियों के लिए है वो उस समय में प्राचीन धारा में इसके संदर्भ में उसका प्रयोग जो है किया जाता था. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. Historians and their sources. इतिहासकार तथा उनके साधन. Okay, the people who study the history are known as the historians or a chronicler. Historian or chronicler, जो इतिहास की जांच पड़ताल करते हैं, इतिहास की स्टडी करते हैं, तो हम लोग हिस्टोरियन और
क्रॉनिकलर कहते हैं. ओके, तो दे हैव टू डिपेंड इफ दे आर ट्राइंग टू फाइंड द सम एविडेंस और स्टडी द हिस्ट्री, दे नीड सम ऑफ द सोर्सेज. तो उनको कुछ साधनों की ज़रूरत होती है. विद द हेल्प ऑफ द सोर्सेज दे कैन गेन नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, जिनकी मदद से उनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी मिल पाती है. So as the precious time, some sources were there which were also reliable on the period of this period, that were the main sources. The main sources of study history were still reliable, like coins, monuments, boulders, inscriptions, manuscripts, texts, etc. तो इस पीरियड में भी कुछ ऐसे साधन थे जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे और आज भी उन साधनों के ऊपर इतिहासकार निर्भर करते थे इतिहास की जानकारी एकत्रित करने के लिए, जिसमें कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं कॉइन्स, जो सिक्के. And we have also discussed in the previous chapter of class 6 about the importance of the coins. monuments, जो कोई प्राचीन भवन जो हो सकते हैं. boulders, कोई शिलाएं. ओके, inscription, अभिलेख, इसको अभिलेख या शिलालेख कह सकते हैं. manuscripts, जिसको हम लोग हैंड रिटन टेक्स्ट कह सकते हैं. ठीक है, और ये याद रखेंगे कि manuscripts जो है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो इसको पांडुलिपि, प्रतिलिपि या फिर हस्तलिखित भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग पांडुलिपि, प्रतिलिपि या हस्तलिखित भी कह सकते हैं. पांडुलिपि, जैसे कि कोई भी चीज़ प्रिंट होने से पहले हैंडमेड लिखी जाती तो उसको पांडुलिपि कहते हैं. प्रतिलिपि, जब किसी चीज़ की कॉपी की जाती है तो उसको हम प्रतिलिपि कहते हैं. हस्तलिखित, जो किसी व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी जाती तो उसको हम लोग हस्तलिखित कहते हैं. ओके, सो हियर वी विल टॉक अबाउट द मेन थिंग, द इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्स्ट एंड बुक्स. So in this period, there were lot of things that were available in the form of texts and books. तो इस समय में ज़्यादातर जो चीज़ें मौजूद थी वो थी टेक्स्ट या फिर किताबें, कुछ स्क्रिप्ट, कुछ छपी हुई चीज़ें या फिर किताबें. और अगर हम उन किताबों की बात करेंगे तो उसमें सबसे जो मेन आती है उस समय फेमस जो थी, दैट वाज दी manuscripts. Was handwritten text or copies by scribes. ठीक है, तो ये एक अपने हाथों द्वारा लिखी गई कॉपीज होती थी जिसको हस्तलिखित और पांडुलिपि भी कहते थे, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है.
लिपि और हस्तलिखित भी कह सकते हैं इसको। और जो पर्सन इसको हाथ से लिखता है उसको स्क्राइब्स कहते हैं, लिखने वाला। ठीक है, स्क्राइब्स, जिसको लेखक जो उसकी कॉपी लिखता है, प्रतिलिपि करता है। ठीक है, प्रतिलिपि करने वाला। Okay, but it was also not a easy task. It was a full of challenge for the historians or the chroniclers, क्योंकि ये भी कोई इतिहासकारों के लिए कोई आसान काम नहीं था कि वो इससे जानकारी प्राप्त कर सकते थे, because there was also the difference between the manuscripts of the same era or same period. अगर दो manuscripts होती थी, कुछ पांडुलिपि या मनुस्मृतियाँ उस समय की होती थी दो, उन दोनों में भी डिफरेंस पाया जाता था, चाहे वो एक ही काल में लिखी गई हो। ओके, इसकी हम लोग आपको एक अभी एग्जांपल दे सकते हैं। इफ़ यू वांट एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर स्टडिंग इन द स्कूल एंड इफ यू वांट टू डू होमवर्क फ्रॉम द कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप अपने दोस्त की किसी कॉपी से होमवर्क कॉपी करना चाह रहे हो, ओके, व्हेन यू विल ट्राई टू स्टार्ट, जब इसको करने की कोशिश करोगे तो यू विल be able to understand that it is not a normal exercise, because you have to find some problem. It may be that you will not be able to understand the writing of your friend. तो ये हो सकता है कि आपको अपने दोस्त की लिखाई समझ में ना आए, and in this case what you will do, you will write some words by guess. कुछ words को आप guess करके लिखोगे, so there can be a difference in some words and sentences, and it can create a lot of difference. जब किसी वर्ड्स, किसी सेंटेंस में आपको समझ नहीं आएगी तो आप गेस करके लिखोगे तो उसमें अंतर आता जाएगा। इन द सेम वे द manuscripts have been written by the scribes and there can be a difference. So this is the big challenge for the historians or the chroniclers. तो इस तरह से ये chronicles के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। So manuscripts that were written by manuscripts were written by scribes, also known as miniature small size of 10.5 into 7.1 centimeter with beautiful pictures and decoration, which was the main source of attraction for the readers. तो उस समय कई तरह की मनुस्क्रिप्ट्स जो थी लिखी जा रही थी, तो ये जो मनुस्क्रिप्ट्स थी, मनुस्मृतियाँ थी या पांडुलिपि थी, वो स्क्राइब्स लिखने वाले जो उस प्रतिलिपि को लिखते थे उसको मिनिएचर भी कहते थे। शॉर्ट फॉर्म इट इज आल्सो नोन एज द मिनिएचर, यू कैन से दैट स्मॉल स्केल short copy. Okay, and its size was also small, 10.5 into 7.1 centimeter, और इसको इसमें खूब सुंदर तस्वीरें और डेकोरेशन की जाती थी जो रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है आकर्षित भी करती थी। Now we'll talk about in 13th century manuscripts were written
by Ziauddin Baryani in 1356. He wrote the first version and second after 2 years. But the historian who still can't find the first version till 1390. लेकिन जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बरानी द्वारा 1356 में जो 2 वर्जन मनुस्क्रिप्ट्स के लिखे गए थे, जिनके आधार पर इतिहासकार को काफ़ी जानकारी मिल सकती थी, लेकिन इतिहासकार को सिर्फ उसका सेकंड पार्ट ही जो है मिला है एंड टिल 1390 बिकॉज इट हैज़ बीन लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्योंकि ये जहाँ पर संग्रहालय या अजायब घर होता है, जहाँ पर ये मनुस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं, वहाँ से जो है अब तक ये गुम हो चुका है, जिसके कारण इतिहासकार इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं. एंड नाउ विल टॉक अबाउट द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल नए सामाजिक तथा राजनीतिक समूह. So as we are discuss about the changing the change in the law of nature, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बदलाव का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक प्रकृति का ये नेचर है, नियम है कि बदलाव आना जरूरी है. एंड दिस इज आल्सो द सिंबल ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन. तो ये एक तरह की सभ्यता का विकास के साथ भी इसका क्रम जो है जुड़ा हुआ है. सो एज देयर वर द चेंजिंग, सो द सोसाइटी वाज चेंजिंग डे बाय डे फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट. भूतकाल से लेकर अब तक इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा जो था बदलाव आ चुका था. सो देयर वाज आल्सो द डेवलपमेंट, स्पेशली विल टॉक अबाउट देयर वर यूजिंग ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, wheel was also using for spinning. तो उस समय में जो सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई, जब विकास हुआ, तो उस डेवलपमेंट के दौरान जो है देयर वाज अ यूजिंग ऑफ पर्शियन व्हील. जो पर्शियन व्हील जो था, जो पहिया घूमता था, जिसकी मदद से जो पानी निकलता था, इरिगेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड्स और प्लांट्स, सिंचाई करना, जिसके द्वारा फसलों की, खेतों की या पौधों की या फूलों की सिंचाई की जाती थी. व्हील वाज आल्सो यूजिंग फॉर स्पिनिंग, और कताई बुनाई का काम भी था, जो था कताई और बुनाई का काम डेवलप हो चुका था. तो व्हीलिंग, जैसे चरखा घूमता था, जिसकी मदद से स्पिनिंग किया जाता था, कपड़े के लिए कताई और बुनाई की जाती थी. ओके. So as well as there was the changing in the food items also. तो उस समय जो भोजन सामग्री थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं. ओके. There were changing in the food items also.
like various spices, tea, कॉफ़ी एक्सेट्रा। तो फूड कई तरह के भोजन सामग्री जो थी आगे और विकसित हो चुकी थी, जिसमें कई प्रकार के मसाले, चाय और काफ़ी आ जाती थी। ओके, एंड दीज थिंग्स वर नॉट brought up separately, but it was along with the some people or society who were having some new ideas also। तो ये चीज़ें सिर्फ अकेली ही नहीं आई, बल्कि अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आई, और उन लोगों के नए नए विचार थे। जब इनका मिश्रित हुआ तो उसमें और ज़्यादा सोसाइटी पर बदलाव आया और कई तरह के चेंजिंग आए। इट वाज द इरा ऑफ मोबिलिटी और ट्रैवलिंग। The main group who traveled through the continent, or the subcontinent, was Rajputs। तो उस समय जो एक मोबिलिटी का, ट्रैवलिंग का, यात्रा करने का एक दौर शुरू हो चुका था। द मेन ग्रुप को ट्रैवल थ्रू द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के रास्ते से जिस समूह में सबसे ज़्यादा यात्राएं की उस समय, वो राजपूत थे। ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रास, द सन ऑफ रूलर। और राजपूत शब्द जो है वो राजपुत्रा से बना है। राजपुत्रा यानी कि राजे के पुत्र, द सन ऑफ रूलर, जो अपने आप को किसी शासक के वंश से उनके बेटे मानते थे। बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ वैरायटी एंड सोर्सेज अवेलेबल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड दे जस्ट वांट टू ट्राई टू चेक देयर लक और फॉर्च्यून। वो अपनी किस्मत को, भाग्य को बदलना चाहते थे, इन साधनों की खोज करके उनका यूटिलाइज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की यात्राएं की दूर दूर तक एक उपमहाद्वीप में, जिसको कि जिस प्रजाति को राजपूत का नाम दिया गया, जो अपने आप को राजपुत्र यानी कि किसी सन ऑफ रूलर, किसी शासक का बेटा भी मानते थे। दे वर नॉट कंसीडर देमसेल्फ ओनली द रूलिंग क्लास, बट दे वर कंसीडर देमसेल्फ आल्सो, they were also consider themselves क्षत्रियस। तो वो अपने आप को क्षत्रियस मानते थे। who were the warriors, who were the commanders in army also, जो योद्धा भी थे और सेना में कमांडर भी थे। ओके, अलॉन्ग विथ, तो अभी हमने राजपूत की बात की है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अलॉन्ग विद राजपूत मराठास, सिख्स and Jats were also emerging। तो उस समय में राजपूतों के साथ साथ जो था मराठा, सिख, जैसे मराठा में हमने शिवाजी मराठा का नाम सुना है। सिख धर्म में हमने जो फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, और आगे जाकर सिखों की जो कमान संभाली थी वो 12 मिसल्स as well as under the leadership of बंदा सिंह बहादुर and the great warrior महाराजा रंजीत सिंह, उसके बारे में। एंड जाट्स, they were also emerging, वो भी उभर कर आगे सामने आ रहे थे। ओके, एंड the main occupation of people at that time was also the agriculture। उस समय भी लोगों का मुख्य पेशा जो था
एग्रीकल्चर था, एज वेल एज दे वर ब्रीडिंग सम एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड कीपिंग देम एज अ डोमेस्टिक। कई पशुओं को, पंछियों को जो है पालतू बनाकर रखा जा रहा था उस समय भी। तो एग्रीकल्चर उस समय अपने ऊंचे पड़ाव पर थी, जो कृषि या खेती बाड़ी कह लो। दी फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर फॉर द पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जंगलों को साफ किया जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए। सो द पीपल हु आर लिविंग देयर दे हैव टू फोर्स टू लीव द प्लेसेस एंड सेटल एनी अदर प्लेसेस। तो लोगों को वो जगह छोड़कर कहीं और, किसी और जगह पर सेटल होना जो था पड़ रहा था उस समय में। ओके, एंड सम पीपल वर देयर हु वर स्टिल देयर एंड टिल्टिंग द लैंड्स। अभी भी कुछ लोग वहाँ पर स्थापित थे, who were tilling the lands as well as they were considered themselves as a peasants, जिन्होंने अपने आप को peasants बना लिया था। यानी कि peasants जो किसानों को ही कहते हैं, जो जिनका मेन कार्य जो है किसानी रहता है, कृषि पर निर्भर रहते थे। they were considered as the peasants, so this was their main occupation and it was also the source of the income of the president lord there। जो वहाँ पर मेन चीफ होता था, उसकी मुख्य आय का साधन भी एग्रीकल्चर हो गया था। बिकॉज द पीसेंट्स हैव टू पे द टैक्सेस टू द प्रेसिडेंट लॉर्ड और रूलर। जो वहाँ का प्रेसिडेंट शासक होता था, लॉर्ड होता था, उसको टैक्स देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉप्स, गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज। उसको फसल या कुछ सेवाएं या कुछ वस्तुओं के रूप में जो है उस समय जो था कर भी दिया जाता था। एंड इन दिस फॉर्म देयर वाज द सोसाइटी डेवलपिंग। और समाज जो था, समाजीकरण हो रहा था उस समय, सोसाइटी बन रही थी, कुछ नई संस्थाएं इसमें बन रही थी। देयर वाज आल्सो जाति सिस्टम आज वेल। तो जिसको हम लोग कहते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा भी जो थी उस समय जो थी विकसित हो रही थी। ओके, एंड इन वन विलेज देयर वर अ लॉट ऑफ जातिस एंड सब पार्ट्स ऑफ द जातिस आल्सो। जातियों के एक ही गांव में कई रूप थे और आगे जाके उनके उप रूप सब पार्ट भी माने जाते थे। दे वर हैविंग सम पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन and it was guided or leaded by the elders of that group। उस ग्रुप का जो लीडर होता था, मुखिया होता था, उसके द्वारा उन रूल्स और रेगुलेशंस को मेंटेन किया जाता था, सेटल किया जाता था। However, it was necessary for the jatis, particular jatis, to follow the rules and the regulation of the particular village under the leader or chief। लेकिन किसी भी जातिस के लिए उस समय वो जो गांव में रहते थे, उस गांव के मुखिया या नेता के जो द्वारा निर्धारित किए गए रूल्स और रेगुलेशन को मानना अति आवश्यक होता था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर इन द पार्ट 1 एंड इन पार्ट 2 विल डिस्कस एंड कंप्लीट द चैप्टर। एंड इफ यू आर understand utilizing our channels, please try to like and subscribe our channel. Thank you very much.